Hello and welcome to Countdown Jharkhand. This is actually a most fascinating election. We have talked to scores of people in the farms, in the villages, in the small towns and in the big towns. And I can tell you the level of astuteness, political astuteness in this state is perhaps more than I've seen in any other state. The people of Jharkhand are really intelligent politically. There are two big thrusts in this election. The BJP's main focus is that there are Muslim infiltrators, we have to get rid of them. A bit reminiscent of Trump in America. We also spoke extensively to the charismatic Babulal Marandi of the BJP. And on the other side, the JMM, they have the two articulate, the Chief Minister, Hemant Soren, and his wife emerging as the star campaigner in this election, Kalpana Soren. It is in two phases, this election. Phase 1 is in the west with 43 seats. And phase 2 is in the, northeast with 38 seats. So just have a quick look at which party is stronger in the 6 different regions. In Dhanbad, the BJP tends to be a bit stronger. In Palamu, the BJP is stronger. In Kolhan, the JMM and Congress alliance is a little stronger. In Santhal, also the JMM and Congress alliance is stronger. And in the other two regions, the north and the south, they are about equally strong. Now, what are these alliances? What's the Mahagathbandhan and what is the BJP alliance? Well, remember there are a total of 81 seats. In the Congress JMM Mahagathbandhan alliance, or many people call it the India Mahagathbandhan alliance, there's the JMM, the Jharkhand Mukti Morcha, the Indian National Congress. They're contesting 43 and 30 seats. The Rashtriya Janata Dal 7 and the Communist Party of India Marxist-Leninist Liberation contesting 4 seats. They're unusually strong in this area, in this state. The BJP plus the AGSU alliance, the Bharatiya Janata Party contesting 68 out of the 81, the All Jharkhand Student Union contesting 10, the Janata Dal United JDU 2, the Lok Janshakti Party of Ram Vilas contesting 1 seat. So this alliance, Dorab, these alliances, fairly predictable, but they do say that in the JMM alliance, the weak link is the Congress party. See, state has been a part of Bihar. Congress has been weak here since the 1990s when Lalu Prasad came in. Over the 15-20 years, so you can't expect one part of a state to have any strength when the whole state, Congress has actually vanished also in Bihar. So Congress is the weak link, and this is a tribal state. So you would expect the JMM to be stronger. So we're very lucky to be joined by Professor, I'm going to call you, Professor Vaidyanath Mishra, former editor of the Nirbhay Patik, and also professor teaching at St. Xavier's and Ranchi University, but basically a journalist all your life. All your life, but intellectual journalist. I can't say whether I am intellectual or not. So everybody is saying that in the JMM Congress alliance, the Congress is the weak link and they are pulling it down. Is that true? Yes. It is true. Yes. Why is that? ये कहानी केवल झारखंड की नहीं है, पूरे देश की है। देश के अत्यधिक जो राज्य हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य हैं, वहाँ जहाँ कांग्रेस है, जी हाँ, उसके पास अपना संगठन नहीं है। जी हाँ। और संगठन माने ऑर्गेनाइजेशन, इक्वेशन और कैंडिडेट, ये इलेक्शन में 3 प्रोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं। जी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इक्वेशन आपका ठीक हो और आपका कैंडिडेट अच्छा हो। ये 3 में अगर 2 ठीक है तो काम चल जाता है, लेकिन 3 में तीनों गड़बड़ होंगे तब तो कुछ नहीं चलेगा। करेक्ट। तो कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो बहुत कमज़ोर है। अभी चुनाव से मुझे लगता है कि 2 महीना पहले जो है उन्होंने अपना अध्यक्ष बदला है। अब वो 2 महीने में वो अध्यक्ष उसको रिवाइव करेगा, कैसे संगठन करेगा, उनके पास संगठन नहीं है। तो ये एक समस्या है और वो कमज़ोर कड़ी है पूरे गठबंधन की, और वो जितनी सीटें लूज करेगा उतना ही पीछे जो है गठबंधन जाएगा। And another factor which we've been studying is that all throughout India, local regional parties are getting stronger and stronger. So the JMM has that advantage, and one of its main planks is that we are
a party of the people of Jharkhand, and we will look after your future. We spoke to the Congress leaders and the JMM leaders about this factor of the Congress being the weak link. JMM is the main force, and people are saying the weak link is the Congress. एक बार जब आप कोलिशन में होते हैं, खासकर स्टेट 2 में देखा जाए, यही तो कोलिशन का एक बड़ा सुप्रिट है कि डिफरेंट स्टेट्स में हमारे सामने रीजनल पार्टीज़ है. रीजनल पार्टीज़ की ये लिबर्टी रहती है, वो थोड़ा सा माइलेज लेते हैं, रीजनल एस्पिरेशन उसको टच करते हैं, और नेशनल पार्टी को कुछ नेचुरल सी बात है कि उनको नेशन को देखते हुए अपना प्रोग्राम बनाना पड़ता है. Regional parties are doing well. They are on the rise generally in India. वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है और ट्राइबल पार्टी है हमारी JMM, तो उनकी एक अपनी लीगेसी है, उन्होंने काम किया है और उनको लोग उस नज़र से देखते हैं. तो वो कहीं ना कहीं वोकेबलरी और कुछ बातों में लोकल टच हमसे ज़्यादा दे रहे हैं, जो हमें नेशनल पॉलिसी को भी मद्देनज़र रखना होता है और साथ में स्टेट को भी हम कैसे कर सकते हैं, उसमें फ़र्क तो रहता है. तो एक नेशनल पार्टी रीजनल नहीं हो सकती और रीजनल इतनी जल्दी एक नेशनल थिंकिंग नहीं बनती है, तो वो डिफरेंस तो है. हमारा 2 नंबर में महागठबंधन का हाथ छाप है. हाथ छाप को मजबूत कीजिए, इतना बटन दबाइए कि उसका टेक आवाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कान का पर्दा फाड़ दे, ऐसा वोट कीजिए. मेन जो मामला है ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, आप देखें पूरे देश में कांग्रेस जहां भी है किसी के साथ है, तो वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर के बड़ी पार्टी बन रही है. अब बिहार में भी देखें तो उनको एक रीजनल पार्टी है, वो खींच रही है. Correct. उत्तर प्रदेश में एक रीजनल पार्टी है जो उसको खींच रही है. Correct. झारखंड में एक रीजनल पार्टी है जो उसको खींच रही है. तो उसके साथ ये दिक्कत है कि वो स्वयं जो है वो बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है. बहुत सारे राज्यों में उसको रीजनल पार्टी का सहारा चाहिए, और रीजनल पार्टी जो यहाँ JMM है वो शुरू से ट्रेडिशनली वो यहाँ की ट्राइबल पार्टी है, और उसके साथ बैकवर्ड भी जुड़ते रहे हैं. Correct. बाद के दिनों में कुछ दिनों के बाद बैकवर्ड धीरे उसको छोड़ता चला गया, क्योंकि अलग पार्टियां भी आ गई, जैसे आजसू आ गई और भी चीज़ें आ गई, तो थोड़ा बहुत उसमें से हुआ. Very true actually. हाँ, लेकिन वहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ट्राइबल जो है वो इंटैक्ट है. और ये 2 शब्द मैं बता दूं, माझी और मोमिन. मोमिन मीन्स मुस्लिम्स और माझी मीन्स ट्राइबल्स. यहाँ 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं, माझी, मोमिन, महतो, वैश्य और दलित. ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनके पास मोटा मोटी जो है वोट बैंक है. So Congress being a weak link in the JMM Congress Mahagठबंधन, but there is a worry for the BJP. Historically, what happens is if you look at the data, the BJP vote drops sharply from Lok Sabha to Assembly. Lok Sabha is held in April, May. Assembly is held in November, December, and in those 6-8 months, the BJP vote dropped sharply. For example, in 2009, it dropped from 29% in the Lok Sabha down to 23%. 6 months later in the Assembly, down 6%. In 2014, the BJP vote was 40% in the Lok Sabha. It dropped to 35% in the Assembly just 6-8 months later. And in 2019, the BJP had a record high of 55% in the Lok Sabha, and it dropped to 33% a few months later in the Assembly, down 22%. Now, Dorab, this drop, because the Assembly is coming up, must be a worry if that's the pattern. Well, if you look at the last let's look at the Modi elections, when 14 and 19. In both cases, the Vidhan Sabha vote has not changed very much. It's the Lok Sabha vote that has gone up or gone down from, say, 40 odd to 50 odd, and this time again to the high 40s. The Vidhan Sabha vote has stayed normally constant around 35%. So, but is it the fact that the Vidhan Sabha vote is not affected by the Modi factor? Is that the reason? And that they can bet on a 35% or so vote on a regular basis? In Vidhan Sabha, BJP does not do so well. Is it the Modi factor? Is it the regional factor? What is the issue? And with only 35% on average or less, that is a worry for the BJP. दिस इज़ द फैक्ट. वो बीजेपी वरीड हो ना हो,
दिल्ली में आप देखिए कि 7 के 7 सीटें लोकसभा की वो जीतती है बीजेपी, और विधानसभा में जो 3 सीट से 8 सीट जीतती है, इससे ज़्यादा वो जीत नहीं पाती है। सब हर जगह की स्थिति है, वो हर जगह की वो स्थिति है। कारण उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जो वोट बढ़ता है वो उसमें मोदी फैक्टर है। इलेक्शन जो होता है मोदी के नाम पर होता है, और दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होता है, इसलिए उसके मतदाता भी टूट करके बीजेपी की तरफ जाते हैं। उनके पास ये नहीं है कि उनको दिल्ली में सरकार बनानी है, तो उनको सरकार बनानी ही नहीं है, तो वो इशू नहीं होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उसकी अपनी सीट्स हैं, जहाँ मिलना है उसको वहाँ उसको मिलता है। जैसे कि कोल्हान में 1 सीट मिल गई और 1 सीट वहाँ मिल गई, संथाल परगना में साहिबगंज की सीट, राजमहल की सीट। लेकिन विधानसभा में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाने के लिए लड़ता है, तब उसके पीछे खड़े हुए जो उसके मतदाता हैं, उसके जो समर्थक हैं, पूरे जी जान से, पूरे ताकत से वहाँ लगते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ा हुआ मार्जिन उसको घटा देते हैं। So we actually discussed this issue with the charismatic BJP leader Babulal Marandi, who has been chief minister, then formed his own party and now is back. And this is what he had to say about some of the key issues in this election. जितना भी केंद्र की योजनाएं होती है, उन सारे योजनाओं को बिना भेदभाव किए हर ज़रूरतमंद लोगों के यहाँ तक पहुँचता है। ट्राइबल इलाके में भी उसी प्रकार से जो वर्षों से बना हुआ है, एक शिबू सोरेन के काल से थोड़ा डायनास्टिक, तो वो उनके यहाँ काम नहीं किया। अगर आज भी आप चले जाएंगे ट्राइबल इलाकों में तो अच्छी सड़कें नहीं है, बिजली नहीं रहती है, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन तब भी उनको लगता है कि चलो भाई तो मास उनको। लेकिन अब जो नए पीढ़ी है, नए जनरेशन है, जो पढ़ लिख करके बच्चे निकल रहे हैं, उनको अब विकास के प्रति एक भूख जगी है। उनको अब लगता है कि नहीं, हमारे गांव भी अच्छी सड़क होना चाहिए, हमारे यहाँ भी अच्छी बिजली होनी चाहिए। Jharkhand, lot of potential. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर वो पोटेंशियल तब आप उपयोग कर सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। कानून व्यवस्था ठीक होगी तो टूरिज्म भी आएगा। अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की ये सारे बुनियादी जो सुविधाएं हैं, इसको उपलब्ध करा दीजिए। बाकी तो खुद ब खुद लोग आज चले आएंगे। So that was the BJP leader Babulal Marandi speaking on the various intricacies of this election. It is a very complex election. Even if you look at other aspects, apart from the political divisions, there is a kind of rural-urban divide. Just look at the basic strengths of the two parties in the rural and urban areas. Basically, in the rural-urban divide, the BJP is stronger in the urban areas, much stronger. Look at what happened in the 2024 Lok Sabha election. The BJP won 17 out of 18 urban seats. 17 out of 18, lost only 1. But in the rural areas, the seats were evenly divided, if not a bit towards being in favor of the JMM. That's the rural-urban divide. So we actually wanted to test this out, and we've talked to many voters, women, men in the rural areas and then in the urban areas, and just listen to a sort of divide that kind of emanates. इस इलेक्शन में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेगा कि निकल जाएगा? हेमंत सोरेन रहेगा कि कहाँ निकलेगा? रहेगा। हाँ रहेगा। वोट उनको, उसी को देंगे वोट। उसी को देंगे? हाँ। क्यों? अभी जो 1000 रुपया डाल रहा है ना, हाँ। 1000 महीना डाल रहा है, फिर जीतेंगे तो और डालेंगे 25। अच्छा। 2500 डालेंगे बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी जिसका इंदिरा आवास सब नहीं मिला है ना, हाँ। वो सबको देंगे बोले हैं। आगे यहाँ पे आगे कौन चल रहा, कौन सा पार्टी आगे चल रहा है? वो तो नहीं जानेंगे, अभी वोट के बाद ही पता चलेगा। क्या हवा क्या कुछ किस? अरे हवा तो ऊपर वाला का देन है। अब देखिए हवा चल रहा है ऊपर वाला का देन से। थोड़ा आगे कौन है इस बार? देखिए जैसे लगता है इधर तो जेएमएम ही चलेगा। अच्छा अच्छा। क्यों? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है, 2 साल जेल में था, नहीं लॉकडाउन था, उसने कुछ कर नहीं पाया। जैसे लॉकडाउन खत्म, जेल गया, जेल से निकला तो फिर अभी उसका हवा चला। अच्छा। उसी को बोलते हैं ऊपर वाला हवा। अभी तो जेएमएम के चल रहा है, अभी तो जेएमएम आई साइड में। अच्छा। क्यों आगे वो क्यों है? नहीं सर, तो जल लेकिन जमीन बचाने चाह रहा है, जंगल ज़मीन को बचा रहा है, माटी उटी अपना आदिवासी को बचा रहा है। अच्छा। फिर अभी आपका जो
जो मैया योजना सब निकाला, फिर बिजली माप, वो सब बहुत किया काम है। ठीक है। और बीजेपी क्या करेंगे वो आने से? वो तो अभी क्या कुछ किए ही नहीं अभी, इतना हमारा इस क्षेत्र में जो था ना विधायक, तो कुट्टी क्षेत्र में 25 साल से कुछ काम ही नहीं किए थे तो सेट में। पार्टी तो ऐसा अभी नहीं आया है। तो बता भी तब निकले नहीं, हवा का कुछ कौन थोड़ा आगे कौन चल रहा? इधर तो थोड़ा जेएमएम का चल रहा है। थोड़ा आगे तो अभी देखने में हेमंत सोरेन लग रहे हैं। थोड़ा आगे क्यों? आगे। क्यों मुद्दा क्या है कि अरे लोग उनको क्यों अच्छा लग रहा? नहीं, मैंने बोल रहे हैं अच्छा, उसके बारे में कह रहे हैं। अच्छा। नहीं तो ऐसा कोई नहीं, तो जब सब अच्छा चलाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। ऑफ कोर्स बीजेपी, यस, फुल Why? सपोर्ट। बहुत किया है मोदी जी ने। He helped us a lot. Everything, yes. What about this thing about Muslim infiltrators and send them away and all that? Political, You agree with that or no? no. The way they are working out now, the Modi, the projects, they are just including like the CA, you can say NRC. This is for the safe side of the Indian citizens, including all the religions basically. When they're saying infiltrators, I mean, Yeah, it's very kick important them out. to control them. No, means the what they are, if they are using kick them out, it's not correct. It's not suggestive even. The discrimination is not good. But in a proper way, we would suggest, being a citizen of our country, India, in a proper way they can sort this down. जो लोग आते हैं यहाँ पे उसके हिसाब से देखिए, इस तरफ का माहौल जो है बीजेपी का ही है। बीजेपी का, आप क्या समझते हैं? हमको भी बीजेपी का ही लग रहा क्यों उसका आगे क्यों है? है। आगे इसलिए लग रहा है कि जिस हिसाब से फुटबॉल है या लोगों का कहना है, मानना है, उसके हिसाब से लग रहा है। अभी तो कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो स्थिति है बीजेपी का सरकार आना चाहिए। और काम बीजेपी सरकार ठीक से करता था, किया भी है बहुत कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है। फ्री में सरकार को किसी चीज़ को नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं। रोज़गार दे दे, नौकरी दे दे, लेकिन फ्री में 1 रुपया किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। फ्री में खिचड़ी मिल जाए किसी को तो दूसरे के यहाँ काम क्यों करेगा? इसलिए फ्री का चीज़ बंद हो जाना चाहिए। मोदी का सनातन प्रेमी है और देश के एकजुटता विकास की रास्ता पर ले चले हैं। क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं, हिंदुओं को तोड़ के राज किया है, और जितनी विरोधी पार्टी हम कंस समझते हैं, और यहाँ राम है। So Dorab, this urban-rural divide may not have been always there, but in the 2024 election it was very clear, and it seemed to be there currently as well among the people. The states that you mentioned, the cities that you mentioned earlier on, the districts, they suggest that they are very strong in urban areas and not so strong in rural areas where actually the tribal population mainly lives. Right. You have a lot of scheduled castes, you have a lot of OBCs in the rural areas as well. Yes, but the scheduled tribes tend to dominate the rural areas because they are a large part of the state. So sir, this rural-urban divide, why is the BJP so much stronger in the urban areas? Why? Because the urban people है, जी हाँ, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसकी जो बसावट है, यानी यहाँ जिस तरह के लोग यहाँ आकर के बसे हुए हैं, और उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो थिंकिंग है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको अपने तरफ खींचने में आकर्षित, क्योंकि इशू बेस्ड वहाँ इलेक्शन होता है अर्बन एरिया में। ट्राइबल एरिया में सीधा ये होता है कि हमारा आदमी है, हमको राज करना है, हमारे राज पर कोई दूसरा नहीं आएगा, और ये हमारा हक मारना चाहते हैं, हमारा हक छीनना चाहते हैं, इसलिए डिवीज़न हो जाता है। तो ये बड़ा कारण है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल आपको दे दूं। यदि यहाँ झारखंड में 28 सीटें हैं ट्राइबल्स की, उस 28 में से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी, सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 14 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। यानी मतलब यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल सीट में से डबल सीट अगर डबल डिजिट ले आती है, ले आएगी कि नहीं ले आएगी आज की तारीख में आई कांट से, तो अगर वो डबल डिजिट में ले आती है अगर वो, तो खेल बदल जाएगा, खेल बदल जाएगा। But you're not forecasting. No. You're not exit pollster. No. कोई नहीं कर सकता। अब तो डर के मारे लोग नहीं बोल सकते हैं।
सबके होश फाख्ता हो गए हैं। अभी अभी इलेक्शन हुआ है हरियाणा का, सबके होश फाख्ता है। मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर वो 11 सीट डबल डिजिट में आएगा तो सीधे सीधे वहीं से निकालेगा सर। Right. और कहाँ से निकालेगा? If you look at the party strengths of SC, ST and how it divides, in the scheduled caste seats, the BJP is slightly stronger. In the scheduled tribe seats, the JMM is much stronger. And you can see in the map there the different regions where in the west and the southwest, it's the JMM scheduled tribes, and in the north and the center, it is the scheduled caste. And of course, in the northeast, it's the scheduled tribes, the Santal area. If we move on to other caste and religious divisions, the OBCs, the BJP is much stronger. Among the forward castes, the BJP is much stronger than the JMM. Among the Muslims, the JMM and the Congress alliance is much stronger, and hardly any Muslims vote for the BJP. And same with the Christians. The JMM and the Congress are much stronger than the BJP. So the BJP as a result has a very strong and fairly strident anti-Muslim campaign. There are infiltrators coming in from Bangladesh, send them away. That is a really divisive aspect in this election. And we asked Kalpana Soren to explain why this is and what the impact is. And then we went on to ask Babulal Marandi a similar question. If you see the map of India, if you see the map of Jharkhand, can you see any border or any line is connected directly to the Bangladesh? And if it is happening, so who is responsible for the international border? I think the central government, they have denied their responsibility. They haven't taken any responsibility. If it is the infiltration is happening, I believe that this is the drawback of the central government. This is a drawback of their responsibilities, which they haven't done, and they cannot all take over all their responsibilities, get away from all the responsibility and blame one particular state for this. अगर बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठ हुए हैं तो इसमें क्या गलत है? अगर झारखंड में मैं कहता हूँ कि भाई इन 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहला सेंसस हुआ और लास्ट जो सेंसस हुआ है 2011 में, 21 में हो नहीं पाया। अगर इस बीच में हम देखते हैं तो ओवरऑल झारखंड में 10% ट्राइबल मतदाता यानी ट्राइबल की पॉपुलेशन कम हुई। उसमें अगर हम देखते हैं कि बाकी किन की आबादी बढ़ी, मुस्लिम की आबादी बढ़ी, सनातन हिंदू की आबादी बढ़ी नहीं थोड़ी, बल्कि उनका भी 1-2% की गिरावट आई। अगर उनकी आबादी इसी प्रकार से कम होते रही, घटते रही, तो फिर आप समझिए कि सब कुछ इनकी कमी आएगी। तो ये अगर हम आज बोलते हैं तो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी। हमने तो नहीं कहा कि भाई यहाँ के किसी मुसलमान को कोई हम लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देंगे। अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन की बात करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। और 10 साल से जो पार्टी हुकूमत में है, जिसके पास डिफेंस मिनिस्टर, जिसके पास इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, 10 साल से अगर उन्हें ऐसा कोई मोमेंट देखा है तो उनको केसेस करना चाहिए था, उनको सामने लाना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन भर के लिए ये कहना कि उधर से आए और अपनी फेलियर्स वो खुद बता रहे लोगों को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की कहीं नहीं है टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। आतंकवाद, उग्रवाद, घुसपैठिए, इट इज ए नेशनल इशू। यहाँ की कोर्ट ने हमें कहा कि आप आइडेंटिफाई करो। हमने कहा कि इट इज नॉट ओनली आवर मैटर, इट इज सेंट्रल मैटर। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, BSF, इनको भी इंक्लूड करो, इनकॉर्पोरेट करो। फिर कोर्ट ने उसको किया। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस किया है। ये लोगों को लगता है बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हेमंता जी ने हमारा सरकार गिराने का सुपारी ले रखा। हेमंत सोरेन घुसपैठियों के लिए ये लोग काम करते हैं, आदिवासी समाज का कल्याण के लिए काम नहीं करता है, झारखंड का कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं। So sir, this Muslim, Hindu, Christian, scheduled caste, it's a very complicated election. How can you simplify it for us?
देखिए, मुस्लिम वोट तो एनडीए को मिलना नहीं है। जी हाँ, रेयर ऑफ दी रेयरेस्ट 2-4% इधर उधर भूले भटके आ जाए। ट्राइबल में डिवीज़न पहले के मुताबिक जितना जम करके जेएमएम को मिला था या यूपीए को मिला था, उसमें यूपीए था, आज वो एनडीए है, तो उतना में उसमें कटौती होगी इस बार। उसका कारण था, पिछली बार जो ट्राइबल था वो बहुत गुस्से में था, बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्से में था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उस समय की जो सरकार थी उसने इनके ज़मीन के कानून का जो ये अधिकार इनके पास था, CNT-SPT जिसको बोलते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसको उन्होंने एमेंड कर दिया था। एमेंड करने का परिणाम ये हुआ कि वह लोगों में यह बात फैल गई कि तुम्हारी ज़मीन ये हड़प लेंगे, तुमको ज़मीन से बेदखल कर देंगे, ये कारपोरेट को दे देंगे, ये अडानी को दे देंगे, अंबानी को, XYZ जिसको भी मैंने ये दे देंगे। ट्राइबल लैंड वाज अंडर थ्रेट। अंडर थ्रेट। ओके। और इसमें क्या हुआ कि एक बड़े पैमाने पर वो एकजुट हो गए, वो सारे के सारे लोग, तो वो इनका वोट वहाँ से एकदम जम करके, एक तो होता है कि हम वोट देंगे, एक होता है हम गुस्से में वोट देंगे, तो उसने गुस्से में वोट दिया साहब, और इनको जो है वहाँ से बेदखल कर दिया। तो ये एक कारण था। इस बार वह नाराजगी, वह गुस्सा वहाँ नहीं है, इतना नहीं है, कम हो गए, कम हो गया। दूसरी बात, पिछली बार इनके पास, एनडीए के पास, माने खासतौर से बीजेपी के पास कोई ट्राइबल लीडर फ्रंट पर नहीं था। इस बार एक ट्राइबल लीडर इनके पास फ्रंट पर है। तीसरी बात यह है कि इन 5 वर्षों में जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है, वो जिसके लीडरशिप में है, उसकी जो पूरे 5 वर्ष की अगर लीगेसी आप देख लीजिए तो वो बहुत दागदार है, तो उसमें कुछ दाग है, धब्बे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल द मैटर्स, बट वहाँ दाग धब्बे हैं, वो भी एक कारण है। और 5 साल की इनकम्बेंसी भी होती है, हर समाज में होती है, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, सबको कुछ उम्मीद होती है। सबकी उम्मीद तो कोई सरकार पूरी कर नहीं सकती है, किसी की नहीं। Gaurav, this religious caste divide is of course happens in many elections, but it is a little stronger this time in the Jharkhand election. The divide may be a little bit sharper this time because the BJP has not done as well in the 2024 Lok Sabha election, the 2019 Lok Sabha. So there is a certain amount of concern that voters are moving away. So division on the basis of community and caste, certainly in the Muslims infiltrating from Bangladesh, gives you the extra marginal vote, which perhaps makes all the difference. Yeah, so we did talk to a lot of Muslims in a Muslim area, in the semi-rural areas of Jharkhand, and there is a worry, and they're definitely not aligned with the BJP. And we talked to one person at the end of it in particular, and listen to what they had to say. आम आदमी अपना ज़िंदगी को जो है आसान से जिए। आसान कहने का मतलब ये है कि हर एक मामले में, चाहे वो बीमारी के मामले में हो, चाहे वो रहन सहन के मामले में हो, चाहे घर के मामले में हो, ऐसा ना हो कि अस्पताल जाए एक आम आदमी, जो आम आदमी होता है, अस्पताल चले गए तो मालूम चला कि उसका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो हैवी हो जाता है ना। जी हाँ। तो उसके लिए क्या है कि हर एक आदमी को आसानी हो। फेमस उन्होंने बहुत काम किया, बिजली मिल बात की है, और 1000 महिला सम्मान दे रहे हैं, अबुआ आवाज दे रहे हैं। सबसे अच्छा काम हेमंत सोरेन सबसे काम बढ़िया कर रहे हैं सर। कोई भी पार्टी रहे अच्छा चलाए। सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और गांव का जो जी सबके लिए भविष्य ताकि बने। और दूसरी बात यह है कि जो भी गांव देहात के लोग हैं, चाहे शहरी क्षेत्र के हो, सबके लिए मतलब रोज़गार का अवसर पैदा करें। देखिए, कोई भी सरकार 100% नहीं है, लेकिन मेरा जो मानना है ना, अगर पर्सनल आप ओपिनियन ले तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा माहौल जो होता है ना, इन्वायरमेंट जो है, आपस का रहन सहन, भाईचारगी जो है, ब्रदरहुड जो है, आप खुद भी जिए, दूसरे को जीने दीजिए। आप जहाँ भी रहिए अमन शांति से रहिए, भाईचारा को कायम रखिए, में ही मेरा पहला वो टारगेट है। That's going to be an important factor in this election, no doubt. But as Dorab said, that by being stridently anti-Muslim infiltrators, maybe the BJP will get more Hindu vote backing it. Now, another key divide, you go to every rally, there are as many, if not more, women participating in the rally, in the crowds, than men. And that's because women are a key factor in Jharkhand elections. 15, 20 years ago,
women's vote was 10% below men's vote. Now just look at the figures. What's happened to the women's vote? It's gone above how many percentage of men turn out. So the focus in this election in Jharkhand is on women voters, because women turnout is higher than men's turnout. For example, in 2019 in the assembly elections, men's turnout was 64%, women's turnout was 67%, 3% higher. And in the 2024, these recent Lok Sabha elections, men's turnout was 64%, women's turnout was 69%, nearly 70%, 5% higher than men. Women in this election are a crucial factor, and all the political parties are focusing on them. And that's why we have a lot of these giveaways which we shall talk about. इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर प्राथमिकता के आधार पर पहले खड़ा करने का काम करेंगे, और इसके आधार पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना लाया, और आज लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया जा रहा है। Issues in this election where a lot of women are turning out. So women are very important. Yes, are you targeting them also mainly? No, sir. The main thing is right now what we are having the first time in Jharkhand, like after becoming, we are about to complete 24 years here. And since more than 18 to 20 years, the BJP has governed this state. And the very first time, like being as a, what you can say, the one very impressive Yojana, that Maya Yojana is there, the first time happening in Jharkhand, and I think that is most influential because the 50% population of Jharkhand, they are benefited by this Yojana. And right now what we have to focus more, because especially in Jharkhand just more women have to come out from their places, and the main necessity is all about our education, our health, and the main focal point should be the entering in the politics. JMM is giving 1,500, you're giving 2,500. नहीं, इलेक्शन के बाद देखिए उसमें कंपटीशन नहीं है। हम सब लोगों ने, जैसे हमने कहा कि झारखंड की जो वास्तविक स्थिति है, जो गरीबी है, तो हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई गोगो दीदी योजना है, 2100 रुपया देंगे, 500 रुपया में गैस की सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। कोई भी जो पर्व होता है फेस्टिवल के ओकेजन में, तो ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। और उसको हम लोग बजट का थोड़ा देख करके ही हम सब लोगों ने इसको बनाया है कि ताकि हम लोग उसको फुलफिल कर सकें। You know, this is not so only in Jharkhand. In every state, state after state, you see special schemes for women, because politicians now realize that more women voters are coming out, that they have to run the household, they have to bear the brunt of inflation. So anything that can help them. It is true that this 5% is higher than most other states. Yes, every state women are 1% higher, 2% higher, or equal. But in Jharkhand, 5% higher in these elections for women turnout. Yes, it's a great jump, and one wonders what it will be this time in the forthcoming assembly elections. Right. So women participation in voting, in politics, everybody we found, the women are very, very politically aware and active. ये आधा सही है, पूरा सही नहीं है। आधा तो मेन है। नहीं, ये हमारे यहाँ झारखंड की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ पलायन बहुत है, और जो युवा हैं, पुरुष हैं, वो कहीं बाहर चले गए हैं कमाने धमाने के लिए, और सारा जो घर की गृहस्थी या खेती बाड़ी वो सारा कुछ महिलाएं संभाल रही हैं। तो वोटिंग जब भी होती है तो वो है ही नहीं, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो झारखंड में है ही नहीं। लेकिन इलेक्शन के टाइम में जो है दैट काउंट्स। इफ अ माइग्रेंट, नो पॉइंट फोकसिंग ऑन परसेंटेज तो निकलेगा उसी पर कि कितना वोट था, कितना परसेंट। करेक्ट, दैट इज द रीजन, बट स्टिल मेक्स वुमेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द इलेक्शन। सर, झारखंड में जो ट्राइबल हैं, यहाँ के जो बैकवर्ड हैं, वो जितने लोग हैं, वहाँ पर नारी सशक्तिकरण पहले से है। वहाँ जो घर की सारी चीज़ें तो तय करने का, घर चलाती हैं महिलाएं, यहाँ तय करती हैं वही। और वहाँ ऐसा नहीं है कि घर से बाहर नहीं, वो खेत में काम करती है, वो गाय बछड़ा भी संभालती है, वो चूल्हा चौका भी संभालती है।
अगर वो बच्चियां आज पढ़ रही हैं तो पढ़ भी रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, नौकरी चाकरी कर रही हैं, तो यहाँ नारी सशक्तिकरण पहले से है। इधर क्या हुआ कि चुनाव के मद्देनज़र आप बात करेंगे तो उसमें दो बातें हैं। एक तो महिलाओं को लुभाने के लिए रेवड़ियाँ दोनों तरफ से हैं, एक हरे रंग की पोटली है, एक भगवा रंग की पोटली है। रेवड़ियाँ दोनों तरफ हैं, एक हरे रंग की पोटली में है और एक भगवा रंग की पोटली में है। एक 3 महीने से दी जा रही है, एक आशा बढ़ा रही है कि हम आएंगे तो देंगे। लेकिन बड़ा सवाल है नारी की सुरक्षा, सिक्योरिटी जो रीजन है उसमें झारखंड की स्थिति बहुत दयनीय हालत है। No, but one thing, yeah. What Dr. Mishra said, men from Jharkhand have always been going out to work. Just as you said, out 10 years ago, fewer women were voting. Now the same men are still going out. The same is happening in UP, Bihar, everywhere. ये बात More women है, are what voting. Dorab is saying, 15 years ago, women's turnout was 10% below men. Men were 60, women were 50%. Now from 50, they've gone to nearly 70. There is more activity. We also spoke to a lot of women, and really you will be amazed at how articulate and how aware and how active their minds are in this election. बीजेपी मैया योजना के बाद बीजेपी निकाले हैं गो दीदी का, वो मंथली 2100 रुपया देने का प्रॉमिस किए हैं। 1500 ये नहीं, हेमंत सोरेन 1000 रुपया दे रहे हैं। अभी बढ़ा रहे हैं ना, पता नहीं, अब हम लोग को तो मिला नहीं है तो हम लोग कैसे जानेंगे। नहीं मिल रहा। हाँ, और यही सुने हैं बीजेपी का भाजपा का सुने हैं कि वो गोगो दीदी का योजना निकाल रहे हैं, मंथली हर महिला को, हर बेटी को मिलेगा 2100 बोल के। जीतेंगे तब देंगे बोल के बोले हैं। हाँ, विश्वास करते हैं ऐसे ही होगा। विश्वास तो करते हैं और नहीं भी करते हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अब सरकार जीतने के बाद सरकार दोबारा हम लोग को पूछने आएगा नहीं आएगा। अभी नहीं जीता है तो पूछने के लिए आ रहा है, अब जीत जाएगा तो पूछेगा नहीं पूछेगा। हाँ, हेमंत सोरेन के बारे में कि यही कि बहुत लोगों का बिजली बिल ज़्यादा हो गया था, किसी ने लोन ले चुके थे तो किसी का लोन माफ़ हो गया, बिजली बिल का माफ़ी कर दिए हेमंत सोरेन। बहुत लोग का था कि 80, 90, 1 लाख इतना पहुँच गया था, तो गरीबों को थोड़ा सहायता मिल गया। इसीलिए उन लोगों को तो अच्छा भी लग रहा होगा। उसके वजह से हम लोग का अच्छा, मतलब कि क्या बोलेंगे, हाँ, अच्छा लगा कि सबका माफ़ हो गया, जो जितना लोन लिया होगा, जितना किया होगा, सबका माफ़ हो गया है। अभी तो कह नहीं पाएंगे कि हेमंत सोरेन आगे हैं या भाजपा आगे हैं। थोड़ा आगे कौन है कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग का हिसाब से अभी तो थोड़ा सा आगे हिसाब से, सोचने का हिसाब से तो हम लोग को लग रहा है कि हेमंत सोरेन, भाजपा थोड़ा आगे है। हेमंत सोरेन आगे, भाजपा ये है वोटिंग, बिल्कुल ठीक। अभी वोटिंग चल रहा है ना, इसलिए आप बताइए हेमंत सोरेन का मन में क्या चल रहा है? कौन थोड़ा आगे कौन चल रहा है? भाजपा है अभी तो आगे। 2-1 हो गया। किसको वोट देंगे? हाँ? क्या आप भी वोट देंगे? अच्छा, आप अपने आप देते हैं जी कि आपका पति जो कहते हैं वो करते हैं आप? अपना वोट है तो अपने एक दिन में कितना टोकरी भरता है ऐसे? 50-60 भर जाता है। और आपको कितना मिलता? हम लोग को 200 रुपया। और 200 रुपये से आप क्या करते हैं? 200 रुपया में क्या होता है जो क्या करेंगे? वही बाजार जाने के लिए होता है, साग सब्जी सब खरीदने के लिए होता है। अभी घर जाके क्या पकाएंगे? रोटी और बीन सब्जी बनाएंगे। गाय भी है? हाँ, गाय है, अभी वो सब खिलाने के लिए गाय है। और फिर दूध दुहेंगे अभी, तब जाएंगे घर, उसको सेंटर पहुँचाएंगे। और शाम को खाना पीना बनाएंगे। तो सारा दिन काम ही काम होता है देहात में। लीजिए। So they're the active women of Jharkhand, most impressive and actually inspiring. And one of the issues, because of women being so active and voting, they're increasingly giving competitive politics to give away reveries. But my people call it reverie, they call it freebie. But in my opinion, it's a good thing. That's the one time the poor in this country benefit during elections. In between elections, they don't bother.
So people look down on it, say this is rebadi, but it is the one time the politicians actually go directly to the people. So let's not call it a rebadi or a freebie, we call it good welfare measure. ये अपना अपना विचार है, वो welfare measures of good measures of good things. One time the poor get directly affected. We are seeing the condition of Himachal Pradesh, we are seeing the condition of Karnataka, we are going to see this type of conditions in other states also. We will also face this problem in Jharkhand. Right. Budgetary allocation, where is budgetary allocation? That is we are not going to discuss on this matter. You are only a very rich state. You've got enough budget, just use it properly. No corruption, give it directly. Who will do it? Yeah. Tell me something. We are do very you much look corrupt. at it as a freebie, a terrible thing to do, or it is, I mean... I think it's a good thing to do so long as over a period of time it doesn't bankrupt your state. Now, Yeah, let's yeah. look at Jharkhand. Yeah. Recently, Supreme Court judgment has said that Jharkhand can levy tax on minerals. So far, only the central government. That will give Jharkhand more money. But as he said, Karnataka is having a problem with giving this free. You have to be able, in the long run, only the central government prints money. Nobody else prints money. So you've got to be in the long run, be able to show growth that makes up for these benefits that you give to the poor. So with all these interesting nuances in this election, divisions coming together, which are the big heavyweights, the big personalities? There are many big personalities fighting in this election. Donab, if you could just take us through some of them. Yes. There is Hemant Soren, the chief minister, and his wife Kalpana Soren, who appears to have entered politics less than a year ago, but is electrifying crowds all over the place. Then there's the return of Babulal Marandi, the revered leader, Babulal Marandi, after 14 years in Vanvas. He's come back to the BJP and is the state president. Then there is Meera, many chief ministers who go out, leave their seats to their wives. Meera Munda, the wife of ex-chief minister Arjun Munda, who was actually a minister in Mr. Modi's second government. Geeta Koda, wife of another, Madhu Koda, another ex-CM. Then what Mr. Modi often does, he sends a central minister to fight in a state. Sudarshan Bhagat, BJP, junior union minister, fighting back here. Mr. Champal Soren, who after a few months as chief minister, felt that he ought to be chief minister for life, and he wasn't made that, he joined the BJP. And finally, there is Sudesh Mato, a long-time AJSU president, very influential politician in the state. So quite an array of political heavyweights, charismatic people. One thing about Hemant Soren and his wife, they're both very good speakers, very good, very charismatic people. वो कहना नहीं चाहिए, बट कल्पना सोरेन वो सियासत की नई सनसनी है. ऐसा झारखंड में कोई मतलब महिला नेता कोई है ही नहीं कल्पना सोरेन जैसे. जितना वो साहस करेज है उसके पास, जितना बढ़िया वो बोलती है, जितना उसको एक्टिव रोल में आती है, गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाती है और चिल्ला करके. जब ये जेल में थे तो पूरी लड़ाई कमान उसके हाथ में थी. हेमंत सोरेन जब जेल में थे सारा कमान कल्पना के हाथ में था और वो फर्क डालेगी. And she's only been in politics 10 months. Yes. All these years not in politics. बहुत पढ़ी लिखी है वो. She was a teacher. She was a teacher. Like you? No. मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन वो बहुत बढ़िया काम कर रही है. वो उसका फॉलोइंग बहुत है. वो जहाँ जाती है वहाँ ऑटोमेटिकली भीड़ लगा देती है. जो झारखंड का दिल है, ये दिल ज्यादा रोशन भी होगा, जगमग भी होगा, उज्जवल भी होगा और हमारे बच्चों का यहाँ पर में रोजगार भी मिलेगा. ये सुनिश्चित करेगी ये अबुआ सरकार. जेल जो गए माननीय हमारे गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री जी, उससे और ज़्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग आ गया. गठबंधन के कार्यकर्ताओं में निर्दोष व्यक्ति को उन्होंने जेल घुसा दिया और देखिए उसी का परिणाम हुआ कि गांडे से हमारी कल्पना सोरेन जी विधायक बनी और एक स्टार कैंपेन के रूप में आई. One person we haven't talked about who's doing a lot of campaigning for 1 year is Hemanta Biswa Sharma, who's come from Assam and a very efficient, effective man, right? मैं उनको कह नहीं सकता हूँ इफेक्टिव मैन. इफेक्ट तो पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद, whether he is effective or not. He's effective in his state. Will he be effective here or not? Here or not, yeah. How can I say at this time? Is there a reaction against an outsider coming?
ये तो यहाँ के लोग हमेशा आउटसाइडर्स को कहेंगे, आप भी आउटसाइडर हैं, मैं भी आउटसाइडर हूँ, सब आउटसाइडर हैं, कोई भी आ जाए। लेकिन यहाँ पर मीर साहब कांग्रेस के, वो भी आउटसाइडर हैं, राहुल गांधी आएंगे तो वो भी आउटसाइडर होंगे, लालू प्रसाद आएंगे वो भी आउटसाइडर। Only the Sorens are not outsiders. यस, ये सब पॉलिटिकल गिमिक है, ये होता रहता है, चलता रहता है, लोग मारते रहते हैं। ये फीलिंग्स देखिए इस चुनाव में। कल्पना सोरेन, she is a woman, she is a charismatic leader. More women are voting. Is she going to make the difference? Thanks for being with us for Countdown Jharkhand. Do join us for Countdown Maharashtra as well. Thank you for being with us. Bye-bye.